کے لیے ہوتا ہے. آمین. اب آپ میرے ساتھ کہیں, ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. آمین. عزیزو, اس آیت کے 3 حصے ہیں جن پر آج ہم غور کریں گے. پہلا حصہ ہے ہر شخص میں. ہر شخص میں. اور جب یہاں پر لکھا ہے شخص, تو اس کا مطلب ہے ہر مرد اور عورت میں. ہر شخص میں. یہ کلیسیا کی بابت لکھا گیا ہے, اور ان میں ان اشخاص میں, یعنی جب لکھا ہے ہر شخص, تو اس کا مطلب ہے اس میں بھی شامل ہوں, اس میں آپ بھی شامل ہیں. اور آج میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کلیسیا میں بھرپور انداز میں شامل کریں, مسیح کے بدن میں بھرپور انداز میں شامل کریں. ہر شخص میں, ایک میں نہیں, صرف پاسٹر میں نہیں, صرف انٹرسیسرز میں نہیں, صرف ایلڈرز میں نہیں, صرف کوائر میں نہیں, وومن منسٹری میں نہیں, بلکہ چرچ کے بارے میں لکھا ہے ہر شخص میں. آمین. ہر شخص میں, جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ایک میں, ہر شخص میں. یہ پہلا حصہ ہے, سب سے پہلی بات جو سیکھنے والی ہے. دوسری بات یہاں پر لکھا ہے ہر شخص میں روح کا ظہور ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ روح کا ظہور. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر شخص میں کلیسیا میں روح کا ظہور ہونا چاہیے. صرف پاسٹرز میں نہیں, صرف ایک خاص لوگوں میں نہیں, چند لوگوں میں نہیں, ہر شخص میں روح کا ظہور ہوتا ہے. روح کا ظہور ہونا چاہیے. مینیفیسٹیشن آف دا ہولی اسپرٹ. Holy Spirit must be manifested in our body, in our life. ایک شخص کی زندگی میں روح کا ظہور ہونا چاہیے. ہر شخص میں روح کا ظہور ہوتا ہے. آمین. آمین. اور اس میں آپ سب شامل ہیں. آپ میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تو شاید ایک عام ممبر ہوں, میں تو شاید بزنس مین ہوں, میں تو شاید صرف جاب کرتا ہوں, یا میرا یہ ایریا نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں. ہر شخص میں روح کا ظہور ہوتا ہے. آمین. آمین. تیسری بات, جب روح کا ظہور ہوتا ہے تو فائدہ پہنچتا ہے. آمین. آمین. کلیسیا کو فائدہ پہنچتا ہے. آئیں یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں جو ہمیں روح کو بخشتا ہے. بولو خدا یسوع مسیح کی, خدا یسوع مسیح کی, خدا یسوع مسیح کی. اگر آپ فائدہ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں روح کا ظہور ہونا چاہیے. صرف میں ہی فائدہ نہ لے جاؤں روح کے ظہور میں, صرف کوائر ہی فائدہ نہ لے جائے, صرف انٹرسیسرز یا ایلڈرز بھی فائدہ نہ لے جائے, بلکہ ہر شخص جو یہاں موجود ہے وہ فائدہ لے. اور فائدہ کیسے ہوتا ہے؟ ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. آمین. ہر شخص میں, ایک شخص میں روح کا ظہور ہونا چاہیے. مینیفیسٹیشن آف دا ہولی اسپرٹ ہونی چاہیے. اور جب بھی آپ کی زندگی میں روح کا ظہور ہوگا تو آپ کو فائدہ پہنچے گا. کتنے لوگ ہیں جو پروفٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں بزنس میں؟ ابھی ہم بزنس کی بات کر رہے ہیں. بزنس میں کتنے لوگ ہیں جو بزنس میں, کاروبار میں یا جاب میں پروفٹ, ان کو نفع ہو, فائدہ ہو؟ ذرا ہاتھ دکھائیں, ایمان سے ہاتھ دکھائیں, ڈر کیوں رہے ہیں؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ اس کلیسیا میں جتنے لوگ جابز کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, ان کو پروفٹ ہو, زیادہ پروفٹ ہو؟ آمین. آمین. ایسا ہی. آئے ہم دیکھیں کہ ہمیں پروفٹ کیسے ہو سکتا ہے. غور سے آپ نے سننا ہے. اب پہلا کرنتھیوں اس کا 12 باب کھول لیں, اور اس 12 باب کو ہم نے پڑھنا ہے. 3 باتوں پر ہی ہم نے غور کرتے جانا ہے. پہلی بات کیا ہے؟ ہر شخص میں روح کا ظہور ہوتا ہے. ہر شخص میں آپ نے کہنا ہے کہ میں بھی اس میں شامل ہوں. آج آپ نے اپنے آپ کو شامل کرنا ہے. اس کے بعد ہر شخص کے بعد روح کا ظہور. آپ نے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ میری زندگی میں روح کا ظہور کیسے ہو سکتا ہے. اور تیسری بات ہم نے دیکھنی ہے کہ مجھے اس سے کیا فائدہ پہنچے گا, میرے بھائی کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا, کلیسیا کے کسی فرد کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا. دنیا میں جب ہم جائیں گے تو پھر دنیا کو
क्या फायदा पहुंचेगा। आमीन आमीन। कितने लोग हैं जो दूसरों को भी फायदा देना चाहते हैं? आपका दिल बड़ा है, इसलिए आप अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। आप फयाज हैं। हमारा खुदा जो है वो, उसकी खुशी पता है क्या है? वो देकर खुश होता है। हमारे खुदा की सबसे बड़ी खूबी पता है क्या है? वो देकर खुश होता है। हमारा खुदा इतना फयाज है। आमीन। हम लेकर खुश होते हैं, वो देकर खुश होता है, तो दोनों ही खुश। आमीन आमीन। तो जिसके अंदर खुदा की खूबी आ जाती है वो भी लेता भी है और देता भी है। आमीन। तो आए हम अपने आप को आज कसरत की बरकत के लिए, क्योंकि मैं रूह में देख रहा हूँ आज रूह का ज़हूर यहाँ हो रहा है और हमें कसरत की बरकत मिल रही है, और इस कलाम से आपको कसरत की बरकत मिलने जा रही है। आमीन। और आपने रिसीव करना है ताकि आपकी जिंदगी से, आपके बदन से रूह का ज़हूर हो। तो पहला कुरिन्थियों उसका 12 बाब मैं चाहता हूँ, ये मैं पूरा बाब आपके साथ पढ़ूंगा, लेकिन हम सिर्फ 3 बातों पर फोकस रहेंगे जो मैंने बताई हैं। तो आज के कलाम का उन्वान है, हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। पहला कुरिन्थियों उसका 12 बाब उसकी पहली आयत से लिखा है, ऐ भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था उसी तरह जाते थे। बस मैं तुम्हें जताता हूं कि जो कोई खुदा के रूह की हदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलाऊन है, और ना कोई रूह कुद्स के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुवाफिक अलमियत का कलाम। किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरतें, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जुमा करना। लेकिन ये सब तसीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा को बहुत से हैं मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी, क्योंकि हम सब ने खा यहूदी हो, खा यूनानी, खा गुलाम, खा आजाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही रूह बुलाया गया। चुनाचे बदन में एक ही उज़्व नहीं बल्कि बहुत से हैं। अगर पांव कहे चूंकि मैं हाथ नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। और अगर कान कहे चूंकि मैं आंख नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। अगर सारा बदन आंख ही होता तो सुनना कहां होता? अगर सुनना ही सुनना होता तो सूंघना कहां होता? मगर फिल वाक़या खुदा ने हर एक उज़्व को बदन में अपनी मर्जी के मुवाफिक रखा है। अगर वो सब एक ही उज़्व होते तो बदन कहां होता? मगर अब अज़ा तो बहुत से हैं लेकिन बदन एक ही है। बस आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मैं तेरी मोहताज नहीं, और ना सर पांव से कह सकता है कि मैं तुम्हारा मोहताज नहीं, बल्कि बदन के वो अज़ा जो औरों से कमजोर और मालूम होते हैं बहुत ही जरूरी है, और बदन के वो अज़ा जिन्हें हम औरों की निस्बत जलील जानते हैं उन्हीं को ज्यादा इज्जत देते हैं, और हमारे नाजेबा अज़ा बहुत जेबा हो जाते हैं। हालांकि हमारे जेबा अज़ा मोहताज नहीं, मगर खुदा ने बदन को इस तरह मुरक्कब किया है
जो उस मोहताज है उसी को ज्यादा इज्जत दी जाए, ताकि बदन में तफरका ना पड़े, बल्कि अज़ा एक दूसरे के बराबर फिक्र रखें। बस अगर एक उस दुख पाता है तो सब अज़ा उसके साथ दुख पाते हैं, और अगर एक उस इज्जत पाता है तो सब अज़ा उसके साथ खुश होते हैं। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो। और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मोजज़े दिखाने वाले, फिर शफा देने वाले, मददगार, मुंतजम, तरह तरह की जुबानें बोलने वाले। क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब उस्ताद हैं? क्या सब मोजज़े दिखाने वाले हैं? क्या सबको शफा देने की कुव्वत अनायत हुई? क्या सब तरह तरह की जुबानें बोलते हैं? क्या सब तर्जमा करते हैं? तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरज़ू रखो, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूं। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। आमीन। सब कहें आमीन। हर शख्स में रूह का ज़रूर होता है, और खुदा ने बदन को इस तरह से डिजाइन किया है कि बदन के अंदर मुख्तलिफ अज़ा है, हाथ है, कान है, नाक है, आंखें हैं, दिल है। कुछ अज़ा ज़ाहरा है और कुछ छुपे हुए हैं, कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे अंदर छुपे हुए हैं। लेकिन खुदा का डिजाइन इतना जबरदस्त है कि सारे अज़ा मिलकर एक बदन बनते हैं। और ये बड़ी जबरदस्त एनालॉजी है, ये बड़ी बेहतरीन मिसाल है मसीह के बदन के लिए, कलीसिया के लिए। एक शख्स जो है वो अकेला जो है वो एक ऑर्गन हो सकता है, लेकिन वो पूरी कलीसिया नहीं है। हम कलीसिया के अज़ा हैं, याद रखें। हम फर्दन फर्दन अज़ा हैं। आप अकेला शख्स ये नहीं कह सकता मैं कलीसिया हूं। सिर्फ हाथ ये नहीं कह सकता कि मैं पूरा बदन हूं। सिर्फ आंख ये नहीं कह सकती मैं पूरा बदन हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बदन में क्या है? यूनिटी है। यूनिटी इस बदन के अंदर यूनिटी का ये आलम है कि अगर एक उस खुश होता है तो दूसरा भी खुश होता है, पूरा बदन। अगर एक उसको दुख पहुंच रहा है, तकलीफ में है, तो पूरा बदन तकलीफ में है। यूनिटी इस बदन में, अपने बदन में देखें। इसलिए जब कलीसिया की बात की जाती है हर शख्स, तो इसका मतलब है खुदा हर शख्स को एक ऑर्गन की तरह, एक उज़्व की तरह जानता है। इसलिए हम सब मिलकर फर्दन फर्दन अज़ा हैं, लेकिन कलीसिया होते हुए एक ही बदन है। आमीन आमीन। बदन का कौन सा हिस्सा ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है? बताएं, कौन सा हिस्सा आपके ख्याल में इंसान के बदन में कौन सा हिस्सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जी, सारे इंपॉर्टेंट है। हर एक की अपनी वैल्यू है। हर बदन के हिस्से की अपनी वैल्यू। अगर परफेक्शन है तो बदन के सारे अज़ा काम करने चाहिए। आंखें काम करनी चाहिए, कान सुनने के लिए काम, हाथ जो है वो वर्क करने के लिए, दिल जो है वो पंप करने के लिए, दिमाग जो है वो इंस्ट्रक्शन देने के लिए। अगर दिमाग बिल्कुल काम कर रहा हो सही, और किसी की बदन के कुछ हिस्से पे, हाथों पे या किसी जगह पर फालिज हो, तो दिमाग की इंस्ट्रक्शन का कोई फायदा नहीं है। खुदा ने इसी तरह कलीसिया को डिजाइन किया, इसी तरह से कलीसिया को डिजाइन किया। इसलिए आज अजीजों, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आज आपने लेकर जानी है। आपने अपनी कलीसिया के अंदर अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त, अपना फंक्शन लेकर जाना है, क्योंकि हर ऑर्गन का एक फंक्शन है।
आंखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए, नाक सूंघने के लिए, पाँव चलने के लिए, हाथ काम करने के लिए, दिल जो है वो ब्लड को पंप करने और सर्कुलेट करने के लिए। आज खुदावंद चाहता है कि रूह का ज़हूर आपके अंदर हो, लेकिन आपने देखना है कि आपका कलीसिया में फंक्शन क्या है, फिर रूह का ज़हूर होगा। आमीन। हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होगा। रूह का ज़हूर कब होगा? जब आप अपने आप को अवेलेबल करेंगे। इसलिए खुदा का बंदा कहता है कि कलीसिया को कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम इस रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो, ना वाकिफ रहो। वो आपको वाकिफ करवाना चाहता है, वो आपको बताना चाहता है। अगर आप ना वाकिफ रहेंगे, बेखबर रहेंगे, नहीं जानेंगे, तो फिर आप कलीसिया में फंक्शनल नहीं हो सकते, बल्कि आप कलीसिया का हिस्सा नहीं हो सकते। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए जाते हैं। इसलिए आज मार्फत हासिल करनी है, इल्म हासिल करना है, वाकिफ होना है। किस बात से होना है? कि मैं हर शख्स में मैं भी शामिल हूं। हर शख्स में आप शामिल हैं, खा बच्चे हैं, खा बूढ़े हैं, खा जवान हैं, खा किसी भी एज में हैं, आप सब शामिल हैं। आमीन। तो आपने बदन की यूनिटी को बरकरार रखना है। जब बदन में यूनिटी ना हो तो फिर इंसान जो है ना, जो ज़ाहिर तौर पर देखा जाए, इंसान पागल हो जाता है। आपने देखा होगा कई लोग अपने आप को मारना शुरू करते हैं, जख्मी करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है उनका बदन डिस्टर्ब है। अगर कलीसिया के अंदर, खानदान के अंदर एक दूसरे को लोग लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे, मारना शुरू कर देंगे, एक दूसरे से फायदा लेना शुरू कर देंगे खुद से ही, तो फिर इसका मतलब है दूसरे को फायदा नहीं दे रहे, फायदा नहीं पहुंचा रहे, तो इसका मतलब है बदन डिस्टर्ब है। आज बड़े गौर से सुने और अपनी रूहानी नेमत को आपने पहचाना है और रिसीव करना है। आज मैं आपके लिए दुआ करूंगा। खुदावंद ये चाहता है कि आप रूहानी रैलम में दूसरों के लिए फायदा मंद हो। आमीन। 7वीं आयत में लिखा है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुआफ़िक़ अलमियत का कलाम। किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शफा देने की तौफीक, किसी को मोजज़ों की कुदरतें, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जमा करना। लेकिन ये सब तसीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। आमीन। आमीन। रूहुल कुद्स ऑथराइज है कि वो जिसको जो चाहे बांटे। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? रूहानी नेमतों की आरज़ू रखना। अगर आप आरज़ू नहीं रखेंगे तो फिर आपको नहीं मिलेगा। जब वो बांटने आता है तो पता है किसको बांटता है? जो आरज़ू रख रहा होता है। वो आपकी आरज़ू का ख्याल करता है, वो आपकी तमन्ना का ख्याल करता है, वो आपके दिल की मुराद का ख्याल करता है। इसलिए जो शफा की नेमत लेना चाहता है, रूहुल कुद्स उसे शफा की नेमत बांटेगा। जो नबूवत की नेमत लेना चाहता है उसे नबूवत की नेमत मिलेगी। जो रसूली खिदमत लेना चाहता है उसे रसूली खिदमत मिलेगी। जो नबी बनना चाहता है उसे नबूवत मिलेगी। जो उस्ताद बनना चाहता है उसे कलाम मिलेगा, ताकि वो दूसरों को सिखा सके, दूसरों की जिंदगी में बरकत ला सके। जो मुंतजम बनना चाहता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहता है, चर्च का इंतजाम करना चाहता है, बड़े बड़े सेमिनार्स क्रूसर्स करना चाहता है, खुदा उसे एडमिनिस्ट्रेशन की विजडम देगा, मुंतजम होने की। जो पासबानों का मददगार बनना चाहता है, खुदा उसे मददगार की नेमत के तौर पर और बरकत के तौर पर इस्तेमाल करेगा। आमीन। गौर से सुने, आपने आज आरज़ू रखनी है नेमत की, आरज़ू रखनी है। और ये 12वें बाब में 13वें बाब में बार बार कहा गया। पहली आयत में लिखा है, भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर हो। रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर नहीं रहना, ये पहली बात है। दूसरी बात हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में, इसी बाब के आखिरी आयत में 31 आयत में क्या लिखा है? तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरज़ू रखो। आमीन। और फिर
14 बाब में लिखा है, उसकी पहली आयत में, मोहब्बत के तालब हो और रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो। आमीन। आज खुदावंद ये चाहता है कि अगर आप चर्च में फंक्शनल नहीं है, बस आप कहते हैं मैं चर्च का मेंबर हूं, बस, खुदा चाहता है पूरे चर्च को इस्तेमाल करना चाहता है, गैर कौमों के लिए, लोगों के लिए, घरों के लिए, फैमिलीज के लिए, जो बीमार हैं उनकी शिफा के लिए, जो माली मुश्किल में है उनको उठाने के लिए। एक एक शख्स जब इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा तो मैं कहता हूं कितना बड़ा काम होगा। आमीन, आमीन। तो इसलिए रूहानी नेमतों से बाखबर रहना है, पहली बात। दूसरी बात, रूहानी नेमतों की आरजू करनी, हर शख्स को आरजू करनी है। जितने यहां बैठे हुए हर शख्स किसी ना किसी लेवल पर आपको खुदा इस्तेमाल करना चाहता है। खिदमत बड़ी या छोटी नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि हमारे बदन के अज़ा जो हैं छोटे या बड़े नहीं होते, सबका अपना अपना काम, अपना अपना फंक्शन है। तो आज आपने खुदावंद से कहना है कि मेरे बदन के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर रूह का ज़हूर हो। और रूह का ज़हूर कैसे होता है? गौर से सुने, रूहानी नेमतों से। आपके अंदर रूहानी नेमतें ऑपरेट होनी चाहिए। आमीन। रूह का ज़हूर कैसे होता है? रूहानी नेमतों से। और जो ही रूहानी नेमत आपके अंदर ऑपरेट होगी तो आपको भी फायदा पहुंचेगा, और जिसके लिए वो रूहानी नेमत इस्तेमाल होगी उसको भी फायदा पहुंचेगा। आमीन, आमीन। जब शफा की नेमत ऑपरेट होगी तो किसको फायदा पहुंचेगा? जो बीमार है। जब नबूवत की नेमत ऑपरेट होगी तो किसको फायदा पहुंचेगा? जो खुदा से कुछ अपने बारे में कलाम लेना चाहता है। मोजों की कुदरतें किसी की जिंदगी में के वसीला से ऑपरेट होंगी तो किसको फायदा पहुंचेगा? जिसको मोजा की जरूरत है। आमीन। और खुदा यही चाहता है, मैं आपको बताऊं, मैं आज आपको आखिरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है ये बताना चाहता हूं। हम में से किसी ना किसी को किसी चीज की जरूरत है। किसी को शिफा की, किसी को मोजा की, किसी को ईमान की, किसी को इल्मियत के कलाम की, किसी को हिकमत के कलाम की, किसी को गैर जुबान की, किसी को तर्जमे की, किसी को रूहों के इम्तियाज की, किसी को इंतजाम करने की, किसी को रसूल होने की। किसी ना किसी तरह से आपकी जिंदगी में कोई ना कोई जरूरत है। आमीन। कोई भी यहां ये नहीं कह सकता मैं मोहताज नहीं। कोई शख्स यहां पर ये नहीं कह सकता कि मैं मोहताज नहीं। आपके पास कसरत का मालो दौलत भी हो तो फिर भी आप किसी न किसी चीज के मोहताज रहते हैं, और वो मोहताजी आपकी कौन दूर कर सकता है? दूसरा शख्स जिसके पास वो नेमत है। इसलिए नेमतें बांटी जाती हैं कलीसिया के अंदर, रूह कुछ बांटता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो इस तरह से बांटता है ताकि यूनिटी रहे, मोहब्बत रहे, कोई अपने आप को बड़ा ना समझे। हर शख्स कलीसिया में किसी चीज का मोहताज रहता है इस तरह से कि कोई गुरूर ना करना शुरू कर दे कि मैं ही सारा कुछ कर सकता हूं। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। सबसे पहले हर शख्स में आप शामिल हैं। दूसरी बात, रूह का ज़हूर कैसे होता है? रूहानी नेमतों से। और 3 किस्म के काम होते हैं कलीसिया में। पहला है सर्वस का मतलब क्या है कि आप अपनी सर्विसेज जो है खुदावंद की नजर करते हैं। अपने हदिये, नजराने, चंदे, दयायकियां खुदावंद की नजर करते हैं। फिर मिनिस्ट्री, सर्विस के बाद मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री में ये होता है कि आप को किसी ना किसी खिदमत के लिए चुना जाता है, मुकर्रर किया जाता है। एल्डर्स, इंटरसेसर्स, क्वायर लीडर, ये आपकी मिनिस्ट्री है, ये खिदमत है आपकी। उसके बाद है ऑफिस जो है ना वो बेसिकली 5 है जो बाकी सारे ऑफिसेज उनके अंडर है। पहला ऑफिस जो है रसूल का है, दूसरा ऑफिस जो है नबी का है, तीसरा ऑफिस जो है वो एवेंजलिस्ट का है, मुबश्शिर का, और चौथा ऑफिस जो है वो पास्टर का है, पासबान का, चरवाहे का, और 5वां ऑफिस जो है वो उस्ताद का है, टीचर का है।
یہ 5 آفیسز خدا یسوع نے کلیسیا کے اندر مقرر کی ہیں. باقی سارے آفیسز منسٹریز جو ہیں اور جتنی بھی سروسز ہیں وہ ان کے انڈر کام کرتی ہیں. آمین. یہ ایک انتظام ہے جو خدا نے اس زمین پر بنایا ہے. آمین. آج دونوں ہاتھ اوپر کریں. میں آپ کو دونوں ہاتھ اوپر کریں. خدا ان کی ضرور. آج میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دعائیا ماحول میں آپ خدا سے کہیں کہ خداوند مجھے روح القدس کی نعمتیں دے, روحانی نعمتیں دے, تاکہ روح کا ظہور ہو. روح کا ظہور کیسے ہوتا ہے میں نے بتایا, روحانی نعمتیں جو آپ کے اندر کام کرتی ہیں ان کے وسیلہ سے ہوتا ہے.